Okay. So in this class, we will start with the compensation management, which is also the salary structure. See, why compensation management we are studying is because we know that payroll management is all about processing of salary, right? We process salary. So in order to, the main function of payroll management is processing of salary. So you need to know the salary structure. What are the components of salary? Okay, what are the components of salary? What is the use of adding certain components? What are the components which differ in private sector and public sector? Because the salary structure varies from public sector to public sector enterprises to different private sector organizations. Okay. So compensation management, in compensation management, we will study the different salary structure. Being a student of management, you must know what are the components which are added in your salary, what are the components of salary, and what is the use of adding those components in your salary. Fine. So you first write down few points so that you have a record of writing. And once I explain this, you'll be able to understand it in an easy way. You write down and then I'll explain it. And when you revise it, it will be better for you. Write down. The various direct and indirect type of paying. मैम एक बार और रिपीट कीजिए. The various direct and indirect right. The various direct and indirect payments which are made to the employees for their services rendered to the organization For the services बाद में. for their services rendered to the organization is known as compensation management. Is known as compensation management. मैम स्पेलिंग बोलिए ना. Compensation management, COMPEN, write down, COMPENSATION, compensation. Okay. So what is compensation management? The various direct and indirect payments which are made to the employees in lieu of their services which they have rendered to the organization is known as compensation management. ठीक है. जो सर्विसेज एम्प्लॉयज रेंडर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उन सर्विसेज को देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है उनको, जिसमें कि डायरेक्ट पेमेंट्स भी आता है और इनडायरेक्ट पेमेंट्स भी आता है. मैम आवाज रुक के आ रही है. सी आई थिंक देयर इज, सबको आ रही है या सिर्फ तुमको आ रही है? बाकी लोग नहीं बताओ. मैम, अच्छा आ रहा आवाज आपका मैम, सही आ रहा है. Then there must be network problem at your side because here everyone can hear that. Yes. अब ठीक आ रही है. Okay. So there are various, ये जो compensation management होता है इसमें direct payment भी होता है और indirect payment भी होता है. इन दोनों को हम compensation management की ही कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि दोनों employers जो employee को देता है वो इसलिए देता है because of the services that any employee has rendered to the organization. ठीक है मैम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट कैसे किया जाएगा जो भी एम्प्लॉइज है उसको?
हम एक बताएंगे बैंक। आगे की क्लास। नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट बैंक, वो बैंक के बारे में नहीं बोला जा रहा है आपको। जब मैम अभी बोला कि मैम कि बैंक के थ्रू हो जाएगा, एक हैंड टू हैंड कैश। नहीं, तो हैंड टू हैंड अभी पेमेंट होती है, हार्डली कहीं पेमेंट होती है। हैंड टू आप हैंड नहीं होते पेमेंट मैम, होती तो नहीं वो है। आप तो मैम अकाउंट पे आती है ना पैसा। अकाउंट में बस। यस, द सैलरी कम्स इन अकाउंट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पेमेंट का मतलब यहाँ कुछ और है, तुम लिख लो। Yes, ma'am. फिर जब हम क्लास में अभी आगे की क्लास में समझाएंगे, इसी क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू दिस सैलरी कंपोनेंट्स, तब समझ में Yes. आ जाएगा। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। write down. Compensation management is important. Compensation management is important. Compensation management in ma'am Is important both at the national. or in the nation. Compensation management is important both at the national and international level for the organization. मैम मैनेजमेंट के बाद Compensation management is important. उसके बाद मैम Is important both at the national and international level. International के बाद Both at national and international level for the organization. level organization. Yes, ma'am. Okay, right. It is a major HR tool Major HR tool to manage their employees. to manage employees. मेजर टूल्स के बाद मैम To manage their employees. Employees. मैम इसका मतलब ना बताते हैं, लिख लो फिर बताते हैं। टू मैनेज एम्प्लॉय। employee. Write down, I'll explain it. Don't worry. I'll not leave anything that I have made you write unexplained. Don't worry. It's an important tool both at national and international level. It is a major HR tool to manage their employees. And write down, it's a process to get its money worth. एंड मैम It is a process to get its money worth. It money worth. Worth, WORTH. Money worth. Yes, ma'am. And encourage And encourage and hold skilled employees. and hold in employees. Skilled employees. Skilled employees. Hmm. Yes, ma'am. Okay. अब सुनो, क्या मतलब होता है इसका कि when you say that it is a compensation management is a major HR tool which is required. Major HR tool which is required to get worth of its employees, worth of what it is paying. इसका मतलब होता है जब किसी और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करती है, you all mute your mic, okay? Unless you have to say something, you mute it, because unknowingly also a lot of background sound comes. Yes, when you have to say something, you unmute yourself. So what happens that मेजर एचआर टूल का क्या मतलब हुआ? कॉम्पेंसेशन डिजाइन करना किसका काम होता है? एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक एचआर पॉलिसी होती है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी होती है, और वो सैलरी का पैकेज डिटरमिन करती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये काफी कुछ गाइडलाइन से चलता है। सेक्टर में भी एचआर होता है ना? हाँ, होता है। तो मैम तो उसमें जो भी सैलरी होता होगा तो एक फिक्स लेवल पे होता होगा ना मैम, कि हाँ। जिसका 25,000 है तो जैसे हाँ, प्राइवेट वो सेक्टर में नेगोशिएट बढ़ती है नहीं, वो इन बढ़ती गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक में फर्क है। प्राइवेट सेक्टर को काफी कुछ छूट है कि वो अपने हिसाब से पर्क्स, बेनिफिट्स ये सब ऐड कर सकते हैं। मैम तो उसका मैम, दोनों रिक्वायरमेंट में का है। और बेनिफिट क्या है मैम? बोलो। बेनिफिशियल क्या है दोनों में से मैम? जैसे मैम प्राइवेट सेक्टर में जैसे जॉब करते हैं, मतलब वैसे उसमें हर एक फैसिलिटी मिलता है मैम। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कुछ फैसिलिटी मिलता है, कुछ कुछ नहीं भी मिलता है मैम। अच्छा, जैसे मैम जैसे इसमें मैम सब कुछ मिलता है, अलाउंसेस वगैरह, एचआरए वगैरह इसमें भी मिलता है, पब्लिक सेक्टर में भी मिलता है मैम। पहले मैम फिक्स अमाउंट पहले मिलता था ना मैम, कि रिटायरमेंट के बाद पैसा मिल जाता है। तो जैसे अब तो बंद हो गया मैम, कि वो पेंशन वगैरह जिसको कहते हैं, वो तो नहीं मिलता है मैम।
they still have, see they have modified it, मतलब 2014 का सात में। मॉडिफिकेशन है, तो उसका मॉडिफिकेशन है, एंड स्टिल दे हैव स्कीम्स ए एंड स्कीम बी। अगर आप ऑप्ट करते तो ये सब बहुत कुछ है, तुमको हम सैलरी बताते हैं अभी इस क्लास में, तुम लोगों को कंपोनेंट्स धीरे धीरे बताएंगे, सब कुछ Yes, बताएंगे, बेसिक डीए सब कुछ बताएंगे, ठीक है, Yes, ma'am. डोंट वरी। देखो कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट किसका काम होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट सेक्टर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर का काम होता है कॉम्पेंसेशन डिफाइन करना। कॉम्पेंसेशन आप ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आपका जो मन आया आप वो सैलरी दे दिए। इट इज अ Fixed मेजर रहता है एचआर। प्राइवेट सेक्टर में फिक्स्ड होता है क्या? No, सैलरी ma'am, public सुने हो sector कि नहीं कि सैलरी निगोशिएबल? कभी मैम बढ़ भी जाता है, कभी घट भी सकता है, फिक्स्ड तो नहीं रहता है मैम। फिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर कॉम्पेंसेशन पैकेज ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का खराब होगा, अगर आपको पैसा ही नहीं दिया जाएगा या फिर उसकी एचआर पॉलिसी खराब होगी, आप ज्वाइन करेंगे? नो मैम। नहीं करेंगे। उसी पोस्ट पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अच्छी सैलरी देगी, अच्छा जिसकी एचआर salary, पॉलिसी, जिसकी अच्छी एचआर पॉलिसी हो, benefits भी मैम। हाँ, जिसका बेनिफिट्स अच्छा होगा, जिसकी एचआर पॉलिसी अच्छी होगी, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं, टर्नओवर अच्छा होगा मैम। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, टर्नओवर अच्छा होने से जरूरी नहीं है कि सैलरी बढ़े, ओके। व्हेन यू टॉक अबाउट एचआर पॉलिसी, वी शुड एक्सक्लूसिवली टॉक अबाउट एचआर पॉलिसी। इट इज सेड कि कंपनी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, बट नॉट ऑलवेज, ओके। प्राइवेट सेक्टर में मैम बोनस वगैरह मिलता होगा मैम? हाँ मिलता है। तो कॉम्पेंसेशन पॉलिसी का क्या मतलब है, कॉम्पेंसेशन पैकेज का क्या मतलब है कि ये डिसाइड करती है किसी कंपनी की एचआर पॉलिसी कि वो अपना कॉम्पेंसेशन किस तरह प्रिपेयर करे इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है। वो हम आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे आगे क्लास में, सो डोंट वरी, ओके। यू जस्ट एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ you understand just this, that compensation package is designed by any organization to make its salary structure attractive। अगर उसकी सैलरी स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसकी कंपनी में काम करना चाहेंगे, ठीक है। उसकी कंपनी का ब्रांड इमेज भी अच्छा होगा। आपको किसी कोई एक पोस्ट होता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी तो वैसे बहुत सारे पोस्ट होंगे ना। यस मैम। अगर कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 30,000 रुपए दे रही है और सेम पोस्ट के लिए दूसरी कंपनी जो सिमिलर चीजों में इन्वॉल्व है, जैसे आईटी की कोई कंपनी मान लीजिए कि विप्रो अगर किसी एक, हाँ, अगर विप्रो किसी एक पोस्ट के लिए आपको 30,000 की ज्वाइनिंग देती है, ठीक है, 30,000 देती है, और इन्फोसिस उसी पोस्ट के लिए आपको 35-40, ठीक है 35-40 देती है। कोई और कंपनी मान लीजिए कॉग्निजेंट है, वो आपको 18,000 ही देती है, ठीक है, वो आपको 18,000 ही देती है। तो क्या आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे सीटीएस ज्वाइन करने में? यस मैम, हम इन्फोसिस नहीं ज्वाइन करेंगे मैम, जिससे हमको ज्यादा सैलरी मिल रही है तो। The employees will refrain from joining those organizations, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कॉम्पेंसेशन पैकेज बनता है या बनाया जाता है किसी पोस्ट के लिए, नहीं रहता मैम। हाँ फिक्स नहीं रहता है, लेकिन वो किसी एक पोस्ट के लिए वो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। एक वर्ड होती है एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है। उस एक्सटर्नल इक्विटी को भी कॉम्प्लाई करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है। मतलब अगर सिमिलर पोस्ट कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर कर रही है तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट द पे गिवन to the employees of your organization are at par with pay given to other employees of similar level of organization, ठीक है। एक्सटर्नल इक्विटी आप बराबर रखेंगे, आप एट पार रखेंगे, तभी तो मार्केट में आपके जॉब का डिमांड बढ़ेगा, राइट? यस मैम। ओके मैम, बोलो। कंपनसेशन मैनेजमेंट जो किया जाता है किस आधार पे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट पे, इनकम पे? नहीं देखो, फिक्स रहता है क्या मैम? नहीं देखो, इसके पीछे एक एचआर की एक्टिविटी आती है किसी जॉब के बारे में ये समझने के लिए कि उस जॉब
में कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं, ये आप लोगों को जैसे थर्ड ईयर में भी आपको पढ़ना होगा, इसको कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। ये वर्ड है जॉब, बता रहे हैं, इसको कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है फाइंडिंग द नेट वर्थ ऑफ अ जॉब। किसी जॉब की क्या वैल्यू है उसको जॉब इवैल्यूएशन से फाइंड आउट किया जाता है। मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जॉब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा सबको मिलता है, लेकिन आप एक बताइए कि एक जनरल मैनेजर का जो जॉब होगा क्या उतना ही इम्पोर्टेंट, जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है क्या उतना ही इम्पोर्टेंट एक असिस्टेंट की पोस्ट होगी? नो मैम, नहीं होगी। जनरल मैनेजर तो मैम हाई लेवल हो गया ना मैम, वो मिड लेवल हो गया वो। तो हाई लेवल और मिड लेवल की बात नहीं है। जब आप कॉम्पेंसेट, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? सुंदरम, यू आस्क्ड दिस यस क्वेश्चन? मैम, ओके, यस मैम। सी, जब आपने ये पूछा कि जॉब की कैसे फाइंड किया जाता है, तब ये समझिए। कंपनसेशन मैनेजमेंट। हाँ, तो कॉम्पेंसेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि जो लेवल ऑफ जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा यील्ड करता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी में, उसकी इवैल्यूएशन हायर होती है। होगी ना? किसी प्यून का पोस्ट क्या कंपनी में उतनी ही प्रोडक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है जितना एक जनरल मैनेजर का पोस्ट है? यस, नहीं, नहीं है ना? अगर नहीं नहीं मैम है कि तो सैलरी जो प्यून को दी जाएगी, क्या उतना कंपनी जितना मेहनत एक प्यून को रिटेन करने में करेगी, क्या उतना ही मेहनत एक जनरल मैनेजर को करने में करेगी? डिफरेंट रहेगा मैम। डिफरेंट रहेगा। उसका हाई उसको बहुत सारा बेनिफिट्स दिया जाता है। उसको जनरल मैनेजर को के पोस्ट को बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको कि आपने अभी लिखा ना डेफिनेशन में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो किसी ने Yes, पूछा ma'am. था कि बैंक से रिलेटेड। ओके हम भी पूछते मैम। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके का होता है, तो हम जब अभी आगे पढ़ाएंगे आपको सैलरी का कॉम्पोनेंट्स, तब बताएंगे कि इनडायरेक्ट का मतलब यही सब होता है कि जितना परक्यूजाइज, पर्क्स, बेनिफिट्स सैलरी के ऊपर, जो सैलरी है वो तो मिलेगी, लेकिन एरियर टाइप के मैम, एरियर एडवांस अलाउंसेस वगैरह भी मिलेगी नहीं, एरियर एडवांस भी नहीं, अलाउंस भी नहीं। इसीलिए हम बोले कि धीरे धीरे इस क्लास को ध्यान से करो। आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आप इस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते कि कहीं अलाउंस बोल दिए, कहीं इंसेंटिव बोल दिए, कहीं बोनस बोल दिए, सब अलग अलग होता है, ठीक है, और सबको देने का कारण अलग अलग होता है। ओके, तो जनरल मैनेजर या हायर सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हम पर्क्स और बेनिफिट्स देते हैं जो जनरली नॉन मॉनेटरी होता है, जिसको वो पैसे से नहीं दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? उनको रिटेन करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए। समझ में आई? स्किल्ड मैन पावर को हर ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करके रखना चाहती है अपने पास। कंपनी रिक्रूटमेंट इज अ कॉस्ट। फायदे वह जैसे उस कंपनी में वो काम कर रहा है, मतलब मिनिमम 4 साल से उसको एक्सपीरियंस हो गया, वो जनरल मैनेजर है, उसको नेक्स्ट अलग कंपनी से उसको मिला मैम ऑफर कि हम इतना आपको देंगे, आप मेरे कंपनी में आइए, तो वो जाएगा क्या? वो ये देखेगा ना कि इस कंपनी में उसको कितना बेनिफिट्स है सैलरी के ऊपर। वो ये देखेगा कि इस कंपनी की एचआर पॉलिसी कैसी है, लीव मांगने पे, लीव लेने पे लीव कंफर्टेबली होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना बेनिफिट्स है। बहुत सारा टाइप का बेनिफिट्स होता है, एलटीसी होता है, कंपनी की कार अवेलेबल की जाती है सीनियर ऑफिशियल्स को, कंपनी का रेसिडेंस दिया जाता है, प्राइवेट चार्टर प्लेन दिया जाता है, ठीक है, रियलिटी में दिया जाता है। हाँ दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड में बहुत सारे सीनियर रैंक के जो, जैसे कि कोई जो एमएनसी कंपनीज होती हैं, जैसे इंश्योरेंस की कंपनीज एमएनसी हैं, जो जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया मैम, जैसे देखो, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे जुबली लाइफ इंश्योरेंस करके एक कंपनी थी, तो ये सब कंपनी एमएनसी होती हैं, इनका हेडक्वार्टर कहीं एक कंट्री में बेस्ड होता है और ये अलग अलग नेशंस में ऑपरेट करती है। तो बहुत सारा कोविड में लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था कि लोग जो उसके हायर ऑफिशियल्स थे, कोई छुट्टी मनाने या कोई किसी कारण से इंडिया में था या किसी और कंट्री में था, और अगर उनका पोस्टिंग या वो अफ्रीका से ऑपरेट करते हैं तो उनको अफ्रीका बुलाया जाएगा ना,
ऑनलाइन कितनी प्रोडक्ट, और अफ्रीका में उतना ज्यादा कोविड का प्रॉब्लम नहीं था, तो उनको बोला गया था कि जैसे एज सून एज फ्लाइट ऑपरेट करती है, आप इंडिया से फ्लाइट पकड़िए, और अफ्रीका के जो जहाँ पे भी सेफ उनको जोन। बोला गया सेफ जोन, मतलब जहाँ पे भी उनको क्वारंटीन वगैरह का जो था वहां से करिए, और फिर वहां से उनको चार्टर्ड प्लेन प्रोवाइड किया गया था, उनको और उनकी फैमिली कंबाइंड, कि आप वहां से, आपको वहां से चार्टर्ड प्लेन से उठाया जाएगा, आपको पब्लिक कन्वेंस लेने की कोई जरूरत नहीं। मिनिमम जनरल मैनेजर वैसे कोई भी कंपनी का बनना चाहते तो कितना इयर्स लग जाएगा मिनिमम कोई में? अरे ये डिपेंड करता है बाबा, तुम अगर पब्लिक सेक्टर में काम करते हो तो यू हैव अ टाइम शेड्यूल टू मूव ऑन। कोई भी कंपनी जैसे ओएनजीसी है या सेल है, सबका जनरल मैनेजर है ना, तो ये सब चीजों का बहुत कुछ होता है एचआर में। ट्रेनिंग आपने कितनी की, आप स्किल्ड कितने हैं, आपने स्टेशंस कितना हैंडल किया है, और प्राइवेट सेक्टर में भी डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। कोई जनरल मैनेजर काफी यंग एज में हो जाता है, मैम किसी को टाइम मैम लग जाता सब है। स्किल डेवलप करने पे होता है मैम, समझ से क्या बिल्कुल बिल्कुल, इन द नटशेल वी कैन से Updated दैट इट रहना इज पड़ता ऑल है। अबाउट स्किल। हाँ उम्र उम्र मायने नहीं रखता और टाइम कुछ मायने नहीं रखता, स्किल मायने रखता है। बताने के लिए। ओके, राइट डाउन। उतना पॉइंट्स अब समझ में आया कि क्यों एक मेजर एचआर टूल है, ठीक है, Yes, ma'am. टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नाउ यू राइट डाउन, दिस इज अ मेजर वे, ऐसे लिख लो, कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ मेजर वे, मेजर वे तरीका है, इट्स अ मेजर वे यस मैम to link compensation टू लिंक कंपनसेशन with its general goals and strategies. जनरल मैम मेजर वे के बाद Major ways to link, जनरल के बारे में see, write down. Compensation management is a major way to link compensation to its general goals and strategies. To link compensation स्ट्रेटजी यस मैम with मैम its जनरल टू के बाद एक बार। स्ट्रेटजी general goals and strategies with HR strategy. विद एचआर स्ट्रेटजी यस मैम Okay, with HR strategy. It is an organized practice ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस It is an organized practice which involves balancing the work, बैलेंसिंग के बाद में balancing the work life of What did you write? You write, it is an organized practice which involves balancing the work-employee relation, work-employee relation वर्क एम्प्लॉय रिलेशंस by providing monetary, मैम रिलेशनशिप के बाद एम्प्लॉय रिलेशनशिप employee relation by providing monetary and non-monetary benefits by providing monetary and non-monetary benefits to the employees. To the employees. यस मैम Okay. Write down. Importance of compensation management. इंपॉर्टेंस ऑफ Compensation management. कंपनसेशन मैनेजमेंट यस मैम मैम रिपीट अगेन। Importance of compensation management.
Okay, right. It has a positive control on the competence of workers. It has a Ma'am, repeat. It has a positive control on the competence of workers. competitive Competitive nahi, competence. Competence of workers. competence of worker ना Hmm. मैम माइक ऑफ करवाइए ना मैम. तो माइक ऑफ कर लो. Okay. It has a positive control on the competence of workers. Second point, it minimizes labor turnover. It minimizes labor turnover. It motivates employees. It motivates employees. It results in good industrial relation. It results in good industrial relations. मैम रिजल्ट है क्या मैम? हाँ, it results in, तुम लिख लो, हम पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे. It results in good industrial relations. industrial relation It results in employee satisfaction. repeat. It results in employee satisfaction. मैम Okay. साउंड आ जा रहा है, एक बार और बोल दीजिए. साउंड आ जा रहा है बैकग्राउंड से किसी का. अच्छा ठीक है. It results in employee satisfaction. ठीक है. Written all the points. Now, the first point was it has a positive control on the competence of workers. इसका क्या मतलब होता है? देखो, employee when an employee joins an organization, he joins it on certain salary, but he is always working harder to reach the next level, isn't he? He will always work harder to reach the next level. The compensation package of any organization should be so defined in order to encourage the employees to work harder and maintain their competency. उनको ये दिखना चाहिए कि अगर मैं कॉम्पिटेंट वे में इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, अगर मैं कॉम्पिटेंट वे में इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना इनपुट दे रहा हूँ, तो देयर इज अ स्कोप फॉर माय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आई बात? तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पेंसेशन डिजाइन अच्छा है तो आपको ये लगेगा, जैसे आईटी कंपनीज की अगर स्पेशली बात कर लें आप, तो एक लस्ट रहता है सबको इस चीज का कि मुझे ऑन साइट भेजा जाएगा, राइट? इफ आई वर्क हार्डर आई बी सेंट टू ऑन साइट. ऑन साइट ऐसे ही कंपनी किसी को नहीं भेजती है, क्योंकि जब कंपनी किसी को ऑन साइट भेजती है तो उसकी ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च होता है. 15-16 लाख एक ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय को भेजने में लगता है, ट्रेनिंग देने में. तो इतना पैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही खर्च नहीं कर सकती है किसी एम्प्लॉय पे. ओनली द स्किल्ड एंड गुड एम्प्लॉयज आर सेंट, जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में कॉम्पिटेंट है, राइट? सो अगर आपको ये लगेगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंसी बढ़ाने से मुझे फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली यू विल बी कीन टू डू दैट. सो इट हैज अ पॉजिटिव कंट्रोल ऑन योर माइंड्स, राइट? Right? Understood the point? Next point. It minimizes labor turnover. Labor turnover मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना. ठीक? ये बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज में देखने को मिलता है. सी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे डोंट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ लेबर टर्नओवर. बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लोग नहीं छोड़ते हैं. ओके? छोड़ते हैं, जैसे
कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह हैं, ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती हैं ISM धनबाद से, IIT BHU से, इन लोगों का कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे वो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेते हैं वहां से। तो ISM धनबाद है, ये सब प्रीमियर कॉलेज है, राइट। IIT BHU इन लोगों से लेते हैं। तो क्योंकि they are IITians, because they are IITians and they have so many opportunity everywhere because they are so skilled, right? IIT का स्टूडेंट अपने आप में एक ब्रांड होता है। यस मैम। Those people, they will get enough opportunities even outside the organization. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पे में बहुत ज्यादा 1-1.5 लाख की सैलरी होती है, उससे ज्यादा तो नहीं होती है, राइट। लेकिन यू विल सी दैट देयर आर मेनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो IIT वगैरह को या IIM के स्टूडेंट्स को उठाते हैं, तो वो 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे उनका पैकेज होता है मंथली, और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। Somebody who has studied from IIMs, you know, they might get a package Amazon वगैरह में, क्योंकि वो लोग, उन लोगों की पढ़ाई इस तरीके से बनाई जाती है। वो लोग हर चीज को केस स्टडी की तरह से पढ़ते हैं, थियोरेटिकल बहुत ज्यादा से मतलब नहीं है, वो लोग हर चीज का केस स्टडी करते हैं। तो क्या होता है कि उनके बच्चों को सीधा उठा करके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए वो स्किल्ड किए जाते हैं कॉलेज में, वो इतना कर चुके होते हैं, और उनका पैकेज मंथ का 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख ऐसे भी होता है। इसलिए मैं हायर रहता है IIM का कॉलेज में। हाँ, इसीलिए जब ये लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते हैं तो चांसेस होता है कि ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। 1-1.5 लाख की सैलरी और फिर गवर्नमेंट का इंक्रीमेंट वही 3% बेसिक का ऐसे कम होता है। स्टेबिलिटी है, यू हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स ऑफ इट, सो वैसा होता है। लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा उन इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है जहां जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है और पैसे का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे IT कंपनीज। जल्दी ऑफ हो जाता है ना पूरा। What are you saying in between? No, I have class from 3 to 3:50. 4 बजे तक क्लास नहीं, 3:50 तक क्लास है तुम लोगों के साथ। ओके ओके, अटेंडेंस ले लीजिएगा। you don't worry for attendance, your video was on na, you don't worry. Okay, so these are those organizations. So there are certain organizations like IT companies and all, they have this problem of labor turnover, because employees, they come to the organization, they join the organization, they get skilled and they leave the organization. Okay, so लेबर टर्नओवर को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए कॉम्पेंसेशन पैकेज का किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए उनको सैलरी प्लस जो अलाउंस दी जाती है सैलरी में, उसके अलावा भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिया जाता है, ताकि उनको एक उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहने की लालच हो। उसके अलावा और मनी, पैसा को छोड़ के उसके अलावा ऐसे मोटिवेट भी किया जाता है ना एम्प्लॉय को। उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क मिलता है, एक्स्ट्रा मनी मिलता है, से फ्रीडम टाइप के सेंसिटिव मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए मोटिवेटेड तुम क्यों रहोगे वर्क प्लेस पे? तुम खुश रहोगे तो ऑब्वियसली तुमको अपनी कंपनी छोड़ने का मन नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है मैम, अपॉर्चुनिटी भी है ग्रोथ के लिए, और बाकी जैसे सीनियर सब अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं मैम। तुमने अभी लिखा, देखो ये कॉलेज नहीं होता है वहां पे, ठीक है, इट्स नॉट सीनियर जूनियर थिंग देयर। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज इम्पोर्टेंट, कि आपका सुपरवाइजर आपको जो भी चीजें बोल रहा है, आपसे काम कराने का तरीका वो अब्यूसिव ना हो। इट शुड ऑलवेज बी इन गुड स्पिरिट। अगर आप कुछ सजेशन देते हैं तो दैट इज टेकन बाय द सीनियर्स इन गुड स्पिरिट, फाइन। देयर शुड बी हार्मनी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। वो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छी मेंटेन की जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी तो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हार्मनी होगी, पीस होगी, तभी तो यू विल बी विलिंग टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। से फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके मैनेजर्स बहुत अब्यूसिव होते हैं। पैसा अच्छा मिलने के बावजूद दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, they quit organization because probably the work life balance is not good in some organizations, or your relationship with your manager is not good,
तो ये सब टॉप मैनेजमेंट का की पॉलिसी होती है जो किसी कंपनी में फॉलो की जाती है। और अब की ऑर्गेनाइजेशंस ये समझ चुकी है कि इफ यू कीप द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी, दे विल टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके मैम, तो इस मैनेजमेंट में, कंपनी मैनेजमेंट में तो इसमें ये भी होता है ना कि मनी के अलावा, अमाउंट के अलावा, सैलरी के अलावा भी मोटिवेट किया जाता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। वही तो कह रहे हैं ना कि आगे सैलरी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना, सैलरी स्ट्रक्चर में 2-3 क्लास लगेगा, ठीक है? 2-3 क्लास लगेगा, तो पढ़ाते जाएंगे, डाउट क्लियर होते जाएगा। ये अभी आई हैव नॉट कम टू द मेन पॉइंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कॉम्पेंसेशन पैकेज क्यों दिया जाता है, क्या क्या उसका यूज है, और किस किस तरीके से वो उसको कॉम्प्लायंसेस करना होता है। कॉम्पेंसेशन पैकेज आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होना, एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे, ठीक है? यस। ओके।